سوال ہے امام مالک کو کس عباسی خلیفہ نے کوڑے لگوا کر قید کیا؟ جواب ہے معتصم باللہ نے۔ سوال ہے جس وادی میں بنی اسرائیل میں من و سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے اس وادی کا نام وادی طیہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار نازل ہوئے؟ 42 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 40 سے زیادہ، 50 سے کم۔ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال ہے غار ثور میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناراض ہوئے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اذان دینے کی سعادت کس نے حاصل کی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ 9 اوقیہ سونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ادا کی تھی۔ سوال ہے اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف۔ سوال ہے بتائیں قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے الف۔ سوال ہے ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جیل خانہ جات کس کی ایجاد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے کا کیا نام رکھا تھا؟ جواب ہے قابیل تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟
खोरस के बादशाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस जंग में शिरकत की थी? गज़वाए तबूक में। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं। सवाल है, अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी जहल की शहादत किस जंग में हुई? जवाब है जंग यरमुक में। कुरान मजीद में जिंदगी का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? 145 मर्तबा। सवाल है, उस अव्वलीन सहाबी का नाम बताएं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीब कहा जाता है। जवाब है हजरत जुबैर बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। अगर किसी हामला को तलाक हुई तो तीसरे दिन बच्चा हो गया तो इद्दत कितनी दिन रहेगी? पैदाइश के साथ इद्दत खत्म हो जाएगी। बैतुल मामूर में सबसे पहले कौन सा फरिश्ता दाखिल हुआ? बैतुल मामूर में सबसे पहले दाखिल होने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और इस मस्जिद में हर दिन 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। फिर कयामत तक दोबारा उनका नंबर नहीं आएगा। बैतुल मामूर की अजमत आसमान में बैतुल्लाह की तरह है, और ये बिल्कुल बैतुल्लाह के मुकाबिल है। अगर कोई चीज बैतुल मामूर से गिराई जाए तो ठीक बैतुल्लाह पर आकर गिरेगी। अहले बदर की तादाद लश्कर तालूत के बराबर थी। लश्कर तालूत किसके मुकाबले में निकला था? लश्कर तालूत जालूत के मुकाबले में निकला था। सवाल है, बताएं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे? जवाब है 12 बरस। सवाल है, पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? जवाब है फलस्तीन। सवाल है, जन्नती सबसे पहले खाना क्या खाएंगे? जवाब है पहला वो खाना जिसे जन्नती खाएंगे वो मछली की कलेजी का किनारा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला किस रुख पर था? जनूब की तरफ। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मर्तबा तिजारती सफर पर गए? बिल्कुल नहीं गए, जरूरत ना थी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र सिर्फ एक मर्तबा कुरान में आया है, बताएं किस जगह? सूरह तौबा की आयत नंबर 30 में। दरियाए फरात में कौन सा पहाड़ जाहिर होगा? कयामत के करीब दरियाए फरात में सोने का पहाड़ जाहिर होगा, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सवाल है, अरब का कौन सा इलाका समंदरी मोतियों के लिए मशहूर है? जवाब है बहरीन। सवाल है, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज्यादा लंबी हैं? जवाब है मदनी। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन जुबैर को किस चीज की गुट्टी दी?
जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबाकर इनके मुंह में डाली। सवाल है उस मस्जिद का नाम बताएं जो तब्दीली किबला की वजह से मशहूर है। जवाब है मस्जिद किबलतैन। सवाल है एक गुलाम के हाथ एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गुच्छे भिजवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किए। गुलाम फौरन बोल पड़ा, ये ऐसा कलाम है जो यहाँ के बाशिंदे नहीं बोला करते। ये वाकया पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा सफर आपके जहन में आता है? जवाब है सफर ताइफ का। औरत के होठों को चूमने से कौन सी खतरनाक बीमारी दूर होती है? होंठों के अंदर 11,000 के करीब आसाब होते हैं जो चूमने के दौरान स्टिमुलेट होते हैं और टेंशन में कमी का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और हार्ट अटैक के 50% चांसेस कम हो जाते हैं। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग वाजिबुल कत्ल मुजरिमों की गर्दन मारते थे वो कौन हैं? जवाब है ये 6 हजरात थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत मिकदाद बिन उमरो रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जहाक बिन सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो। बताएं हुस्न में कौन से पैगंबर मशहूर हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बैत रिजवान दरअसल क्या थी? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के खून का कसास लेने का अहद। जन्नत में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी दुनिया की किन किन औरतों से होगी? जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी दुनिया की 3 औरतों से होगी। मरियम बिनते इमरान, आसिया फिरौन की बीवी, कलसूम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो बहन जिसने फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दूध पिलाने वालियों की तरफ रहनुमाई की थी। सवाल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम किसको अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे? जवाब है सूरज को। सवाल है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस बीमारी में मुब्तला किया गया? जवाब है कोढ़ की बीमारी में। सवाल है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की वो फजीलत बताएं जो औलाद आदम में सिर्फ आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ही को नसीब हुई। जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां यके बाद दीगरे आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में आईं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए किस सहाबी को भेजा था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मसअब रजी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना तबलीग के लिए रवाना किया। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहला शहर जो आप अलैहिस्सलाम ने आबाद किया वो कौन सा था? जदान। कुरान मजीद की कितनी सूरतों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 5 बार आया है और सूरतों के नाम क्या हैं? 2 सूरतों में, सूरह बकरा और सूरह ताहा। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा क्यों किया था? जवाब है इसलिए कि कबीला हवाजन और सकीफ किला बंद हो गए थे। उस शख्स का नाम बताएं जिसने दौरे जाहिलियत में खाना काबा को बुत खाने में तब्दील किया था।
دور جہالیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کرنے والے کا نام ربیہ بن حارثہ ہے۔